नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामेश्वर। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर फाइन। Once again we are here with class 4 environmental studies, that is looking around, and we are going to start the new chapter, that is lesson number 14, Baswa's farm. I hope you all are fine. So let's start. So before starting this chapter, first we see what is the content of the lesson. So number 1, in this chapter we are going to see the steps for agricultural practices, cultivation of onion crops and different stages in the growth of onion crop, concept of weed and weedicide, Belvanika village in the state of Karnataka, Baswa's village, that is map reading we are going to see, process of harvesting onion crops, different implements used in the farm, and onion is ready to sell into the market. So students, these all are the main points we are going to study through this video. And in this chapter it is related to farming. So we all are knowing that the farming is the main profession of the people. Like near about 70% of the people, they are doing the farming, and our country is known as agricultural country. India is an agricultural country. So let's see. So next, that is after the completion of chapter, so what you should achieve or what you must know, because that is the target learning outcome. To know the stages of cultivation of crops, to know more about the onion crops, to understand the concept of weed and weedicide, able to locate the state of Karnataka in the political map of India, and able to identify the different implements used in the farm, and to understand the life of farmer and their work. How is the life of farmer is so difficult. So nowadays we are seeing in our daily life too. So these are the targets. Yes, after the completion of this chapter, you must understood all these things. So let's start. So first we are seeing this is the political map of India, current updated political map of India. Now in this we are going to see about the Baswa's village. ये जो बसवा है, बसवा belongs to the state of कर्नाटका. बसवा जो था, बसवा का खेत, बसवा's farm means बसवा का खेत. तो बसवा का गांव जो था, बसवा के गांव का नाम है बच्चों बेलवानिका village, and it is located in the state of Karnataka. Now see, this is the state of Karnataka. Means now which are the states around the Karnataka? See, number 1, that is Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, and Goa. This 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means around the Karnataka, how many states are there? There are 6 states. So this thing also you keep it in mind. When we are seeing the political map, we must know the which are the states around that. ठीक है, जब हम मैप पढ़ते हैं बच्चों, तो कभी भी ध्यान में रखना है कि जो स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके स्टेट के आजू बाजू में कौन से राज्य हैं. ठीक है, तो ये राज्य भी आपको ध्यान में रखना है. कर्नाटका, वी आर नोइंग दैट द कैपिटल ऑफ कर्नाटका दैट इज बेंगलोर. ठीक है, बेंगलुरु. तो कर्नाटका में बेलवानिका विलेज में बसवा एंड बसवा की फैमिली रहती थी. ठीक है, और इस लेसन में
उसमें बताया गया है कि किस तरह से बसवा जो है अपने पेरेंट्स को खेती करने में मदद करता है, ठीक है। और किस तरह से अनियन की खेती की जाती है, अनियन की खेती किस तरह से की जाती है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। तो दिस इज द कर्नाटका विलेज, दैट इज कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका। अ फार्मर परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स इन द फार्मिंग। जो फार्मर होता है, जो भी खेती करने वाले है ना, तो उनके जो स्टेप्स है, नंबर 1 दैट इज द क्रॉप सिलेक्शन। सबसे पहले तो क्या कि कौन सा क्रॉप उनको उस जमीन में जो बोना है, तो सबसे पहले तो उनको क्रॉप का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है। सेकंड दैट इज लैंड प्रिपरेशन। आफ्टर द हमने अब क्रॉप सिलेक्ट कर लिया कि नहीं मुझे यहाँ पे ये गेहूं लगाना है या फिर बाजरा या फिर ज्वार या फिर अनियन, ठीक है। सो फर्स्ट वी शुड सिलेक्ट द क्रॉप, देन next stage is to prepare the land, then next is seed selection, means we should select the seed of good quality। अगर सीड गुड क्वालिटी की है बच्चों तो हमें जो मिलने वाला है जो प्लांट वो भी अच्छा मिलेगा, हेल्दी मिलेगा, ठीक है। दैट इज द सीड सिलेक्शन। नेक्स्ट सीड सोइंग। आफ्टर द लैंड प्रिपरेशन वी आर गोइंग टू सो द सीड into the soil, then irrigation। हमने सीड तो सो कर दिया, तो अब इसको क्या करना है, पानी प्रोवाइड होना चाहिए, बिकॉज द प्लांट्स नीड वाटर, सनलाइट एंड व्हाट दे नीड्स द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे से मिलता ही है, ठीक है। तो ये सब जब मिलेगा तभी उस प्लांट की ग्रोथ होगी। सनलाइट तो जरूरी है, पानी भी जरूरी है, और इसके अलावा सॉइल से मिलने वाले मिनरल्स, ठीक है। सो दिस ऑल दिस थिंग्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। क्रॉप ग्रोथ नेक्स्ट होती है क्रॉप ग्रोथ। अगर पानी मिल गया, सनलाइट मिल गया, मिनरल्स मिल गए, सो दे आर एबल टू ग्रो। फर्टिलाइजर, that is the fertilizer is also essential, that is the compost manure, है ना, natural we can use। fertilizers are very helpful for the growth of a plant। and last stage is the crop is ready to harvest। अगर crop पूरे तरीके से तैयार हो गया तो हम उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। so these all these stages are mentioned in this डायग्राम, ठीक है। इसमें में भी आगे भी हो सकता है, लेकिन दिस ऑल दिस स्टेजेस आर गिवन इन दिस डायग्राम, इन दिस पिक्चर्स यू आर गेटिंग, ठीक है। इसमें सारी स्टेप्स दी गई हैं। सो दिस आर द मेन स्टेजेस ऑफ फार्मिंग, ठीक है। ये सारी स्टेजेस कोई भी क्रॉप आप ग्रो करते हो तो उसके लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है नाउ द सी वी आर गोइंग टू सी द ओनियन क्रॉप्स, दैट इज द टिलिंग द सॉइल। अब इसमें दिख रहा है टिलिंग द सॉइल मीन्स क्या, जमीन को, द लैंड इज गोइंग टू बी कल्टिवेटेड फॉर द रेज ऑफ क्रॉप, दैट इज टिलिंग द सॉइल। इस सॉइल को क्या करना है, डिगिंग करके हम क्या करते हैं, जमीन को, मिट्टी को, जो नीचे वाली मिट्टी होती है ऊपर आती है, ऊपर वाली मिट्टी नीचे जाती है ना। दैट इज द टिलिंग द सॉइल और डिगिंग ऑफ द सॉइल। नाउ सी इन द हैंड ऑफ दिस पर्सन, एक व्यक्ति के हाथ में देखो कुछ इम्प्लीमेंट है, दैट इज द, ये इसे हम जनरल लैंग्वेज में हम तो क्या कहते हैं, कुदल भी कहते हैं। यहाँ पे ये खुंटी है, हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। सो टिलिंग द सॉइल, प्लगिंग द सॉइल, जो हम जमीन को क्या करते हैं, जोतते हैं एक बैल और उसके माध्यम से, दैट इज प्लगिंग द सॉइल। नेक्स्ट, after plugging the land is going to be ready to farm। see this land, you are getting this land, ये लैंड पूरी तरह से क्या होगी बच्चों, हमारी सीड सो करने के लिए रेडी हो गई, ठीक है। नाउ सी दिस
The land is ready to sow the seed. The land is ready to sow the seed. Bullocks pulling the courage and the sprinkling of kurigi. अब ये जो दिख रहा है बच्चों, दिस इज द कुरीगी। अभी इसके यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ से जो फार्मर्स है, ये फार्मर्स क्या करते हैं, सीड डालते हैं और यहाँ से छोटे से ये होता है, उसके माध्यम से फिर क्या होती है, सीड नीचे जाती है। और अदरवाइज द अदर वे इज ऑल्सो देयर, द सीड इज थ्रोन और स्प्रिंकल, दैट इज द स्प्रिंकलिंग ऑफ द सीड। लेकिन जब सीड सो किया जाता है तो उसमें आपको ध्यान में रखना है बच्चों कुरीगी, कि हमें जो सीड सो करना है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, वी हैव टू मेंटेन द स्पेसिफिक डिस्टेंस। जब सीड हम सो करते हैं तो सीड को एक डिस्टेंस पर सो किया जाना चाहिए, ठीक है। इकट्ठा हमें नहीं डालना है, एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए सीड को हमें जमीन में सो किया जाता है, डाला जाता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट ओनियन सीड्स, नाउ सी दीज आर द ओनियन सीड्स, ये दिख रहे बच्चों। अबे ओनियन सीड जब हम जमीन में सो कर देते हैं तो उसके आफ्टर 20 डेज के बाद जो ओनियन प्लांट्स आए, ओनियन प्लांट्स रेडी टू स्प्राउट, ओनियन प्लांट जो है रेडी टू स्प्राउट, ठीक है। ये छोटे छोटे सैपलिंग निकल आते हैं, दैट इज द ओनियन प्लांट्स आर रेडी टू स्प्राउट, ठीक है। तो दिस आर द ओनियन सीड, ये ओनियन सीड्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये पिक्चर ब्लैकिश, ठीक है। ये ओनियन सीड्स है बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट, दिस आर द फ्लावर्स, ओनियन फ्लावर्स। जो ओनियन का जो फ्लावर है, पैच का जो फ्लावर होता है बच्चों, इस तरह से दिखाई देता है। दिस आर द ओनियन फ्लावर्स, ठीक है। Now onion saplings, now these small saplings are there, इसको हम डेली यूज में we are using for eating purpose as a salad, इतना नहीं तो उसका सब्जी में भी इस्तेमाल किया जाता है, we use in curry also, ठीक है, and we use for eating purpose also। so छोटे छोटे जो saplings होते हैं इसको हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नाउ फुल्ली ग्रोन ओनियन प्लांट्स, अभी देखो जब ओनियन पूरी तरह से ग्रो हो जाता है बच्चों, सो इट लुक लाइक दिस इज द फुल्ली ग्रोन ओनियन प्लांट। तो ओनियन प्लांट जब पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो इस तरह से हमें नजर आता है। सो दिस इज द फुल्ली ग्रोन ओनियन प्लांट्स, ठीक है। When we are doing the farming, so in the farming there are different implements should be used. So here are some of the examples of the implement I have shown. Number one, what is this picture? So this is the picture of a kurigi. At the starting of this video we have discussed the bullocks are pulling this kurigi along with the some farmers are there. Now what is the use of this? This kurigi used for to plug the field. This kurigi used for to plug the field. जमीन को जोतने के लिए इस kurigi का क्या होता है, यूज होता है, to plug the field, ठीक है, जमीन को जोतने के लिए। अब आप आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं आप बताइएगा। हमें लगता है इसको हमारे यहाँ पे इसको हल कहते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, हल भी है, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा देखो नेक्स्ट है, दैट इज खुंटी। नाउ खुंटी इज यूज्ड to dig the soil,
इसका फंक्शन क्या होता है? टू डिग द सॉइल या टू लूजन द सॉइल, लूजन द सॉइल। अब इसको क्या यूज, इसको इसका नाम दूसरा है, कुदल भी कहते हैं इन जनरल लैंग्वेज। ठीक है, आपके एरिया में क्या कहते हैं आप उसके बारे में लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गए कुरीगी, खुंटी। फिर नेक्स्ट इम्प्लीमेंट है बच्चों, ये आपने देखा होगा, आपके घर में भी इसको इस्तेमाल करते होंगे। किस लिए यूज करते हैं बताओ जरा? इट इज यूज टू कट द वेजिटेबल, टू कट द फ्रूट और वेजिटेबल। वेजिटेबल को कट करने के लिए या फ्रूट को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज इलिगी। और इसे जनरल लैंग्वेज में तो ऐसे दराती कहते हैं, आपके एरिया में इसको क्या कहते हैं आप उसको लिखिएगा। ठीक है, सो दीज आर द इम्प्लीमेंट्स यूज इन द फार्म। इसका यूज किया जाता है फार्म में बच्चों। ठीक है, सो वट एवर वी हैव डिस्कस, वी आर गोइंग टू डू recap. So we have discussed about the location of Baswas village in the state of Karnataka. What is the name of Baswas village? बेलवानिका। क्या नाम था? बेलवानिका। और इसके अलावा हमने देखे कि नंबर ऑफ स्टेट्स अलोंग दी कर्नाटका के अराउंड में कितने स्टेट्स है बच्चों? 6 स्टेट्स है। ठीक है, फिर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फार्मिंग देखे हमने। नंबर 1 स्टेप्स कौन सी है? सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? क्रॉप सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर लैंड प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन, फिर सीड सोइंग, इरिगेशन, फर्टिलाइजिंग, है ना, फर्टिलाइजर, क्रॉप ग्रोथ होता है फिर, और फिर लास्ट स्टेज क्या है? दैट इज हार्वेस्टिंग। फिर अबाउट द ओनियन सीड्स, आफ्टर 20 days ओनियन प्लांट स्टार्टेड टू स्प्राउट। ओनियन सीड भी हमने देखी, ओनियन सैपलिंग देखे, एंड फुल्ली ग्रोन onion plant also we have seen the fully grown onion plant. Then different implements used in the farm, their names in your area and their uses also. So all these things we have discussed in this video. I hope you all understood up to this. So thank you so much. If you like this video, please like, share and subscribe this channel for more videos on EVS. Thank you.